Hello students, welcome back to our online class with Best English School and with me, your English teacher Havisha Patel students. So class 9, today in this video we would like to start our chapter 5, the snake and the mirror. Okay students, so we won't waste our time. Let's begin about the snake and the mirror. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snake. We listened attentively as the doctor continued with his tale. It was a hot summer night about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. I could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. So students, whenever we talk about snake, कभी भी कोई स्नेक के बारे में आपके बॉडी में कभी कोई स्नेक ऐसे कोल्ड हुआ है, एक फुल ब्लडेड कोबरा, जब कभी भी कोई डॉक्टर्स कोई बात बताते हैं तो हम लोग स्नेक के बारे में बात होती है तो हम लोग चुप हो जाते हैं एकदम, बिकॉज वी आर इन अ वेरी डीप कन्वर्सेशन अबाउट द स्नेक. सो नाउ लिसन द टेल, एक स्टोरी जो डॉक्टर बता रहे हैं. तो डॉक्टर बोलते हैं कि वो एक बहुत हॉट समर नाइट था और उसके रात के 10 बज रहे थे और उन्होंने रेस्टोरेंट से वो खाना खा के आए थे और अपने रूम में चला गया था. तो उसे एक नॉइज़ सुनाई दिया जब उसने डोर को ओपन किया और वो साउंड बहुत फैमिलियर था. तो क्योंकि वो अपना जो रूम था, उसका जो रूम था वो रेड के साथ शेयर करता था, तो उसने एक मैच बॉक्स लिया और जो केरोसिन लैम्प था टेबल के ऊपर उसे वो जलाने लगा. The house was not electrified, it was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were meagre. I had about 60 rupees in my suitcase, along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. There was a regular traffic of rats too, and from the beam I made my bed and pulled it close to the wall. I lay down, but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. So students, वो जो हाउस में रहते थे वो इलेक्ट्रीफाइड था. वो कोई इलेक्ट्रीफाइड हाउस नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो एक स्मॉल रेंटेड हाउस था और वो मेडिकल की प्रैक्टिस कर रहे थे. तो उनके अर्निंग्स भी बहुत ज़्यादा नहीं था. उनके पास सिर्फ और सिर्फ 60 रुपीज़ थी उनके सूटकेस में और कोई शर्ट थे और धोतीस थे, और वो बहुत ज़्यादा प्रोसेस थे एक सॉलिटरी ब्लैक कोट के रिलेटेड जो वो हमेशा पहनते थे. तो उन्होंने वो ब्लैक कोट लिया, वाइट शर्ट लिया और नॉट सो वाइट वेस्ट, मतलब वो ज़्यादा वाइट नहीं था, उसे वो ने लटका दिया. तो उन्होंने अपने रूम के 2 विंडोज़ ओपन किए और आउटर रूम में एक वॉल फेसिंग ओपन यार्ड था और वो टाइल्ड रूफ से लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, मतलब वो पूरा का पूरा लॉन्ग एकदम खुला था. सो देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पे कोई सीलिंग था ही नहीं. सो देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स, मतलब वहाँ पे रेट्स ही रेट्स थे वो बीम के वहाँ पे. और फिर उसने अपना बेड बनाया, उन्हें क्लोज़ किया, पुल किया, वॉल को क्लोज़ किया, और बट तब भी वो ले डाउन तो हो गए, वो बेड में लेट तो गए, बट उनको स्लीप नहीं आई, नींद नहीं आई. एंड वो उठ गए और फिर वो अपने बरामदा में चले गए थोड़ा सा हवा खाने के लिए, और उस टाइम तो ऐसा था कि हवा भी नहीं चल रहा था. I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, The Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp, and a large mirror at small comb lay beside the mirror.
One feels tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt that I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran it through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. Again, I heard that sound from above. So, students, what happened is that वो अपने रूम से बाहर निकले और वो चेयर में बैठ गए। तो वहाँ पे एक बॉक्स पड़ा था और उसके अंदर बुक थी, कौन सी, मटेरिया मेडिका का। तो वो बुक निकाल के पढ़ने लगे। उन्होंने अपने टेबल पे रखा, लैंप चालू किया और एक बहुत बड़ा मिरर भी सामने था। तो उन्होंने अपने आप को देखा और उन्होंने सोचा कि थोड़ा एक बार अपने बाल को कॉम्ब करें। तो जब वो मिरर के पास आए और बहुत टाइम हो गया था कि उन्होंने और वो अपनी पर्सनैलिटी, अपने आप को अच्छे से नहीं रखते थे, तो उन्हें याद आया कि मुझे बहुत अच्छे से रहना चाहिए। और वो ब्यूटी को बहुत एडमायर करते थे, खूबसूरती को, और वो अपने आप को हैंडसम भी बिलीव करते थे। हाँ, बट वो अनमैरिड थे और वो एक डॉक्टर था। सो आई फेल दैट आई हैव मेक माई प्रेजेंस फेल, मतलब मेरे को ऐसी पर्सनैलिटी रखनी चाहिए कि जब मैं आऊँ तो सब मुझे देखे। तो उन्होंने कॉम्ब लिया और वो अपने बालों को सहलाने लगे, स्ट्रेट और नीट। एंड उन्होंने फिर से एक आवाज़ सुनी। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth-shaking decision. I would always keep that attractive smile on my face to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor too on top of it. Again came that noise from above. So उन्होंने वो जो आवाज़ सुनी उसको नेगलेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने मिरर के सामने जाके अपने फेस देखा और उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया कि वो रोज़ अपने आप के फेस को शेव करेंगे और एक बहुत थिन मुस्टैच रखेंगे जिससे वो बहुत हैंडसम लगेंगे। और एक्चुअली वो तो बैचलर है और वो ऊपर से डॉक्टर भी है। फिर उन्होंने मिरर के वहाँ पे जाके एक स्माइल किया और वो स्माइल बहुत अट्रैक्टिव था। अर्थ शेकिंग डिसीजन उनका और एक अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन था, क्योंकि वो उनके फेस में वो अट्रैक्टिव स्माइल उनके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी और वो बहुत हैंडसम फील कर रहे थे। और वो यही सोच रहे थे कि मैं तो अभी बैचलर हूँ और ऊपर से वो डॉक्टर भी है, तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर से कहीं पे से आवाज़ आई। I got up, paced up and down the room. Then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner had I returned than a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneously. So क्या हुआ स्टूडेंट्स कि वो खड़े हुए और वो अपने रूम में गए और रूम में जाके वो बैठ गए। तो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि वो मैरी करेंगे, शादी करेंगे एक वुमेन डॉक्टर के साथ ही, जिनके पास बहुत पैसा हो और उसके पास बहुत मेडिकल का प्रैक्टिस भी हो और वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो क्या है कि कभी कुछ वो सिली मिस्टेक करे तो वो भाग सके और उसके पीछे वो भाग ना पाए और वो उन्हें कैच ना कर पाए। इसके वजह से उसे फैट वुमेन से शादी करनी थी। सच अ सिली पर्सन, राइट स्टूडेंट्स? विथ सच थॉट, ये थॉट सोचते सोचते उन्होंने अपने सीट लिया और वो टेबल में बैठ गए। और तब फिर कोई भी साउंड नहीं आ रहा था। फिर उन्हें एक अचानक से ऐसा साउंड आया, रबर ट्यूब जैसे गिर जाता है ना, वैसे टाइप का एक आवाज़ आया।
ग्राउंड में जो गिर जाता है। बट उसने सोचा कि ऐसी कोई वरी करने वाली कोई बात नहीं है, तो उन्होंने टर्न करके एक बार भी देखा नहीं। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न, मतलब वो बोलते कि मुझे टर्न करके देखना चाहिए, पर तब भी मैंने नहीं देखा। तो अचानक से जब उन्होंने टर्न किया तो उसी टाइम एक फैट स्नेक उनके ऊपर चेयर में आग चढ़ा और उनके शोल्डर में लैंड किया। तो स्नेक जिस तरह से उसके ऊपर लैंड किया और डॉक्टर जिस तरह से टर्न हुए, वो दोनों एक ही टाइम में हुआ, साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम में वो हुआ। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. It would not be correct to say merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness in the light of the lamp. I sat there like a stone image in the flesh. बोलता है मैं जंप भी नहीं कर पाया, मैं ट्रैम्बल भी हड़बड़ा भी नहीं सकता और मैं रो भी नहीं सकता, क्योंकि वो एकदम वैसा टाइम था ही नहीं कि ये सब चीज़ें मैं करूं, क्योंकि वो स्नेक पूरा का पूरा उनके ऊपर लिपट गया था, उनके लेफ़्ट आर्म्स के एल्बो तक। तो वो उनका हेड भी हिला नहीं सकते थे, क्योंकि 3 और 4 इंचेस सामने ही वो स्नेक था। तो इट वुड बी करेक्ट टू से मेरली दैट कि मेरी सांसें अटक गई थी, मैंने अपने सांस को होल्ड कर लिया था, जैसे स्टोन टर्न होते वैसे। बट उनको माइंड भी एक्टिव था, क्योंकि वहाँ पे हर जगह डार्कनेस था, वो पूरा का पूरा रूम अंधेरे में था, एक लाइट की लैंप भी नहीं दिख रही थी, सब एक स्टोन की तरह फ्लैश दिख रहा था। I felt then the great presence of the creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he didn't like it. I turned in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden rod, no, a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. फिर वो क्या बोलते हैं कि वो एक भगवान, एक जो क्रिएटर है वर्ल्ड के, यूनिवर्स के जो क्रिएटर है, उनके प्रेजेंस को याद करते कि गॉड आर यू देयर। वो फिर बोलने जा रहा है कुछ बातें ब्राइट लेटर्स में कि ओ गॉड। फिर उसे याद आया कि मैं ऐसा कुछ बोल ना दूँ कि भगवान गुस्सा हो जाए मेरे से। तो वो ऐसा बोलता है कि मेरे लेफ़्ट आर्म में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई रॉड फायर से लटका हुआ मेरे आर्म्स में उसको दबा रहा है, तो प्लीज़ मुझे कोई स्ट्रेंथ दो कि मैं उसको झेल सकूं। एंड व्हाट कुड आई डू, और मैं क्या करूं, ऐसा वो बोलता है। Then at my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked 4 inches away. Suppose it stuck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish and stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. It seemed as if God appreciated that. The snake turned its head. It looked into the mirror and saw its reflection. I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. Was it admiring its own beauty? Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? So students, क्या होता है कि वो मूवमेंट उसे डॉक्टर को ऐसा लगता है कि वो बस 4 इंच दूर है मरने से। तो वो सोचता है कि मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं है, मैं तो एकदम गरीब और बेवकूफ़ और स्टूपिड डॉक्टर हूँ जो डेंजर को मतलब एकदम बेवकूफ़, और उसके रूम में कोई मेडिसिन भी नहीं है। सो आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपना डेंजर भूल गया और वो मिरर में जाके एक स्माइल करने लगा।
तो गॉड ने उसे अप्रिशिएट किया। उस टाइम उसके हेड में स्नेक लटका हुआ था, तो उसने भी मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखा। तो मिरर में जब स्नेक ने अपना रिफ्लेक्शन देखा तो उसे एक चीज़ दिखाई दी एंड ही वॉज़ वेरी एडमायरिंग हिमसेल्फ ओनली। सो मिरर में जब अपने आप को देख के स्नेक बहुत अट्रैक्टिव लगा। उसे लगा कि मैं इतना, वो अपने ही ब्यूटी को एडमायर कर रहा था स्टूडेंट्स, एंड वो अपने मिरर में देखते ही जा रहा था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। और डॉक्टर ऐसा बोलता है कि क्या पता वो मिरर देख के सोच रहा हो कि मुस्टैच बढ़ाऊँ या आई शेडो लगाऊँ या मस्कारा लगाऊँ या फोरहेड में एक बैंड जैसा लगाऊँ। Then I didn't know anything for certain. What sex was this snake? Was it male or female? I will never know. For the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood. Still holding my breath, I got up from the chair. I quickly went out through the door into the veranda. From there, I leapt into the yard and ran for all I was worth. So students, डॉक्टर बोलते हैं कि मुझे तो इस स्नेक के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो मेल है कि फीमेल है, क्या मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। फिर वो स्नेक उसके आर्म्स में से निकल के उसके लैप में, मतलब गोदी में आ जाता है, एंड फिर वो धीरे से मिरर के सामने चला जाता है। तो उस टाइम जब वो मिरर के सामने जाता है तब तक डॉक्टर अपना सांस होल्ड करके रखता है, संभाल के रखता है, एंड सडनली वो अपने चेयर से उठता है, डोर खोलता है और वेरेंडा से चला जाता है, और जितना दूर चला जा सकता है दौड़ के उतना दूर वो चला जाता है। Phew, each of us heard a sign of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? No, the doctor said. God willed otherwise. My life companion is a thin, reedy person with the gift of a sprinter. Someone else asked, Doctor, when you ran, did the snake follow you? The doctor replied, I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and I took a bath. I changed into flesh clothes. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not only the thing had left behind one thing is as a final insult. What was that? I asked. The doctor said, my vest, the dirty one, the fellow, and such a sense of cleanliness. The rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? Doctor laughed. I never seen it since. It was the snake which was taken with its own beauty. सो स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो भाग जाते हैं, उसके बाद उसके जो नेबर्स होते हैं, उसके फ्रेंड्स उससे ये स्टोरी सुनते हैं कि तुम भागे क्यों गए थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो वो बोलते हैं कि मैं उतने देर तक भागा जब तक मैं अपने फ्रेंड के वहाँ पे पहुँच नहीं जाता। फिर उस दिन वो अपने फ्रेंड के वहाँ पे ही रह गया था। फिर जब वो अपने एक फ्रेंड और दो फ्रेंड के साथ वो अपने घर आया तो उसने देखा कि उसके घर में कुछ है ही नहीं। कोई चोर आया और उसके सारी चीज़ें लेके चला गया, सिर्फ कुछ चीज़ें ही रह गई थी, और वो भी इंसल्टिंग जैसी चीज़ें थी, जैसे कि डर्टी क्लोथ्स और बहुत ज़्यादा वेस्टिंग टाइप के फालतू की चीज़ें। फिर वो देखता है कि उसका रूम पूरा का पूरा खाली हो चुका है। तो फिर वो बोलते हैं कि उसकी एक फ्रेंड पूछते हैं कि तुमने फिर क्या बाद में वो स्नेक को देखा वहाँ पे जाके। तो डॉक्टर हंस के बोलता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि स्नेक अपनी ही ब्यूटी में इम्प्रेस हो गया था, वो अपनी ब्यूटी में ही खो गया था और मैं वहाँ से निकल गया। सो दिस होल स्टोरी हैव बीन रिटन बाय वाइकुम मोहम्मद बशीर। विकुम मोहम्मद बशीर, ये एक्चुअली एक मलयालम में है, एंड दिस वन इज़ हैव बीन चेंज्ड in a different language, have been changed into an English one, and it have been written in a Malayalam.
So this one is about our whole chapter, students. I hope that you understand this chapter, and if you have any doubts, so you can comment me and ask me there. So till there, I will see you in the next video. Stay home, stay safe. With the help of this line, I would like to pack up. So bye bye and have a nice day, students.